السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میں ہلدوانی سے محمد فہیم بول رہا ہوں۔ اجر آپ فرمائیں صاحب، کیا حکم؟ اور حضرت خیریت سے ہیں سب؟ اللہ کا کرم ہے، سب ٹھیک ہے۔ حضرت محرم 17 تاریخ کے ہیں کیا؟ اب ابھی چاند تو کل ہی چاند دکھا ہے، کل 1 تاریخ ہوگی شاید کل۔ تو حضرت میں یہ تعزیے کے تعلق سے کچھ وضاحت فرمائیے۔ کیا وضاحت کرے؟ حضرت جیسے تعزیہ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے، تعزیہ اور حسین علیہ السلام کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، یہ کہنا کیسا ہے؟ یہ بخاری شریف میں امام بخاری نے لکھا ہے، میں نے نہیں لکھا۔ حضرت امام بخاری کی کتاب پوری دنیا پڑھتی ہے، بخاری شریف۔ جی جی جی۔ اس میں آپ نے جب بھی امام حسین علیہ السلام کا نام آتا ہے تو علیہ السلام ہی لکھتے ہیں۔ اچھا۔ اور صحابہ کرام کا نام آتا ہے تو رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، اور امام حسین کا جب بھی نام آتا ہے بخاری شریف میں تو امام حسین علیہ السلام ہی لکھتے ہیں، اور حضرت علی کو بھی علیہ السلام لکھتے ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا کو بھی علیہ السلام لکھتے ہیں۔ جی جی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام بخاری کے دل میں عظمت، پہلے بیت کرام کی عظمت کتنی زیادہ تھی۔ اب آج جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے، وہ لوگ یہ بتائیں پہلے کہ غیر صحابہ کو یہ رضی اللہ عنہ تو کہہ رہے ہیں، لیکن امام حسین کو یہ لوگ علیہ السلام نہیں کہہ سکتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہلو؟ ہاں ہاں۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہتے، یہی مردود لوگ غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ جی جی۔ اور امام حسین کو علیہ السلام کہنے میں ان کو موت آتی ہے، جیسے پیٹ میں درد ہو رہا ہو ان کے، بہت تیز درد ہوتا ہے ان کے پیٹ میں۔ اگر کوئی کہہ دیتا ہے نا امام حسین علیہ السلام، تو یہ جو غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا، ان کے پیٹ میں سمجھ لو مروڑی نہیں آتی بس، یعنی درد بہت ہوتا ہے لوگوں کا۔ ہاں۔ اور حضرت تعزیے کے تعلق سے بتائیے، تعزیے کے تعلق سے یہ تعزیہ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے، جو بناتے ہیں جو گھماتے ہیں؟ سب سے پہلی بات ہے کہ تعزیے کا مطلب سمجھیں۔ تعزیہ ہے تعزیت سے، جیسے کوئی دنیا سے چلا جائے تو اپن تعزیت کرنے جاتے ہیں۔ تعزیت معنی اس کی یاد کرنے جانا ہے، اس کا پوچھنے جانا، حال پوچھنے جانا ہے۔ تعزیہ اسی سے تعزیہ ہے، تعزیت سے تعزیہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی یاد تازہ کرنا۔ تعزیہ دراصل کوئی چیز نہیں، وہ تو امام حسین علیہ السلام کی یاد منانے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ تعزیہ اصل تو امام حسین علیہ السلام کی یاد ہے۔ سمجھ گئے بات؟ جی جی۔ تو یہ پورے ہندوستان میں رائج ہے، اور آج سے رائج نہیں ہے، جب علماء جب بھی موجود تھے۔ حضرت تیمور النگ نے جب شروعات کیا تھا تو ان کے زمانے میں بھی علماء تھے اور آج بھی علماء ہیں، تو وہ علماء بھی تو جانتے تھے نا کہ تعزیہ جائز ہے کہ نہیں ہے۔ مگر صاحب وہ جو بادشاہ تھے نا، وہ تیمور النگ، ہاں حضرت تیمور النگ صاحب، وہ تو شیعہ تھے۔ شیعہ ہو کوئی بھی ہو، اپن کو تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام حسین اسلام کو مانتے تھے بس، اور باقی جو جسے وہ مانتے ہیں وہ جانے، قیامت میں جواب دیں گے۔ ایک ایک بات کو اپن وہ جاسوسی نہیں کر سکتے۔ ہاں۔ جو دنیا سے چلے جائے اس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں مرنے والوں کا ذکر اچھائی کے ساتھ کرو۔ جی جی۔ اب اگر کوئی کفر کی حالت میں مرا ہے، کنفرم ہے، جیسے وسیم رضوی ہے، سلمان رشدی ہے، تو ان کا ذکر تو برائی کے ساتھ ہی کیا جائے گا، کہ تو کفر کی حالت میں مر رہے ہیں، مریں گے۔ جی جی۔ جو بھی کفر کی حالت میں مرے، کوئی بھی ہو XYZ، تو جب تک کسی کا کفر معلوم نہ ہو تو اس کا ذکر اچھائی کے ساتھ کیا جائے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو تعزیہ کی خاص بات میں آپ کو بتاؤں، پورے ہلدوانی میں کسی عالم نے آج تک بتائی ہو تو شاید مشکل ہے، بتائی ہے نہیں بتائی ہو، یا بریلی والوں نے، میں بتاتا ہوں۔ آپ ابھی 10 محرم کے بعد جی، یا محرم کے مہینے کے بعد آپ پرمیشن لینے جاؤ کہ صاحب ہم جلوس نکالیں گے، اکھاڑا نکالیں گے، تو آپ کو پرمیشن لینے میں بہت ٹائم لگے گا، اور دیں گے بھی نہیں شاید جلدی ایک دم، یا دیں نہ بھی دیں لیکن ٹائم لگے گا ایک ہلدوانی کی پرمیشن لینے میں۔
اور ایک ساتھ اگر ہلدوانی کی لو پھر بریلی والے ہم بھی اسی دن جلوس نکالیں گے، رام نگر والے کے ہم بھی نکالیں گے، تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی عظمت دیکھیے آپ، اس حکومت کے دلوں میں، حکومت والوں کے دلوں میں بھی کتنی زیادہ ہے کہ آپ 10 محرم کو پورے ہندوستان میں جلوس نکالو، اکھاڑا نکالو، کوئی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے جی، یعنی یہ پرماننٹ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو پرمیشن ہے۔ جی، ان کو بھی معلوم رہتا ہے کہ آج 10 محرم ہے، امام حسین السلام کا جلوس کے نام سے جلوس نکلے گا اور تعزیہ نکلے گا، تو یہ عظمت ہے ان کے دلوں میں بھی، حکومت کے لوگوں کے دلوں میں بھی۔ سمجھ گئے بات آپ؟ جی، جی، تو اب یہ فائدہ یہ مولویوں کو نظر نہیں آتا ہے کہ ہم کو بغیر یعنی پرمیشن لیے ہوئے اس دن اکھاڑا نکالنے کی پرمیشن ہے اور جلوس نکالنے کی پرمیشن ہے، جلسہ کرنے کی پرمیشن ہے، تو اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے مولوی لوگ؟ بس یہ کہنے جاتے ہیں تعزیہ حرام ہے، تو کئی حرام تو خود کر رہا ہے مولوی۔ چندے کے نام کی روٹیاں یہ کھاتا ہے مولوی، جیسے مدرسے بنواتا ہے اسی کے روٹیاں کھا کے بینک بیلنس کرتا ہے، پراپرٹیاں بناتا ہے، جائیداد بناتا ہے اپنی۔ 20 بچے پٹک لے گا تعلیم دکھانے کو، اور پھر چندہ کرنے پورے ہندوستان جائے گا، خرچہ ہوگا 2 لاکھ کا اور چندہ کر کے لائے گا 20 لاکھ، 18 لاکھ بینک بیلنس کرتا ہے، پھر اکٹھا بینک بیلنس کر کے پھر پراپرٹی بناتا ہے اپنی۔ سمجھ گیا؟ ایسے مدرسے ہے نا حضرت، ہاں مدرسہ کھول دیا اپنے ہی گھر میں، ہاں گھر میں مدرسے کھول لیتے، گھر میں مدرسہ کھول دیا، ایک حافظ لگا لیجیے پڑھانے بچوں کو۔ ہاں یہ بھی ہو رہا ہے، اور رسیدیں کٹ رہی سال کے 12 مہینے، سال کے 12 مہینے رسیدیں کٹ رہی، صحیح کہہ رہا ہوں۔ 4 بچے پڑھ رہے ہیں محلے کے اور رسیدیں کٹ رہی جہاں تہاں۔ اب بتاؤ یہ 20 بچے میں بھی کتنا خرچہ آئے گا؟ محلے کے بستی کے لوگ ہی کھلا دیتے ہیں ان کو، 20 بچے ہوں یا 30 ہوں۔ ہاں اور وہ تو بستی کے بچے، ہاں بستی کے بچوں کے، یعنی چندہ باہر سے کر رہا ہے، چندہ باہر ہو رہا ہے۔ یہ 4 بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے ہلدوانی میں ایسا کر رہا ہے کوئی مولوی؟ ہاں ایسا ہے، ایسا بھی ہے صاحب۔ تو وہ تو پورے ہندوستان میں ہو رہا ہے، یہ رامپور والے بہت کرتے ہیں چندہ، مراد آباد کے لوگ بھی کرتے ہیں، ادھر یعنی بہار کے لوگ بھی کرتے ہیں، آ جاتے ہیں مدرسے بنا کے، وہ تھوڑی بہت دیوار کھڑی کر کے 1-2 کمرے بنا کے جاتے ہیں۔ دارالعلوم کا مطلب کیا ہے؟ ارے اپنی زمین لی انہوں نے، اپنی زمین لی، پلاٹ لیا اپنا، ہاں، اور اس میں مدرسہ بنائیں گے، ہے نا؟ اب جو ہے قوم کے پیسے سے وہ پراپرٹی بن رہی ہے، اپنا پلاٹ لے کے، ہاں، اور 2-4 لوگ اکٹھا کرے کہ ہم مدرسہ بنائیں گے، اور قوم کے پیسے سے چندہ کر کے پراپرٹی بنا دی۔ ہاں ہاں ہاں، اور 1-2 سال مدرسہ چلا، پھر بند کر دیا، بولے چلا نہیں ہے مدرسہ۔ ارے یہ بھی ہو رہا ہے، یہ اس میں ایک یہ ہے یہیں کا رہنے والا نگلیا کے پاس کا، رضا نگر کے پاس کا ایک قاری ہے، وہ بلاسپور میں پڑھاتا تھا پہلے، اس نے بھی یہی سنا، یہی کیا تھا کہ مدرسے کی جائیداد لے کے بیچ باچ کے کیا معلوم اپنے نام کر لیا تھا، کیا ہوا یہ پہلے بلاسپور میں جمال مصطفیٰ مدرسہ ہے نا، وہاں پڑھاتا تھا وہ۔ یہ ایسا کر رہے ہیں، پراپرٹی قوم کے پیسے سے بنوا کے اور اپنے قبضہ کر لے رہے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کی عام بات ہے۔ میری اپیل ہے ہندوستان کے تمام لوگوں سے، اور خاص طور سے راجستھان، مدھیہ پردیش، ان تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ یہ بورڈ لگا دیں مسجد میں کہ چندہ صرف راجستھان والوں کو ملے گا، اور وہ ثبوت کے ساتھ مدرسہ ہوگا تب۔ جی جی جی، یہ ہونا چاہیے۔ اس کی آپ تصدیق کروائیں شہر قاضی کوٹا سے یا شہر قاضی جے پور سے یا بوندی سے، وہ چھان بین کریں گے، وہ بھی پرانت بائی پرانت، اگر راجستھان میں آپ کا کوئی مدرسہ صحیح چل رہا ہے تو دیا جائے گا، نہیں تو نہیں، اور باہر والوں کو چندہ سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں وہ مدرسے جو پہلے سے چل رہے ہیں، جیسے مدر اسلام، مبارک پور اشرفیہ ہے، دارالعلوم دیوبند ہے، ندوہ ہے، لکھنؤ ہے، یہ جیسے دیوبند بریلی کے جو پرانے مدرسے ہیں ان کو تو دیا جائے، باقی جو نئے نئے مدرسے والے بنا کے آ رہے ہیں 10-10 بچے رکھے، یہ ان سے پوچھا جائے کہ فارغ ہونے کی سند بتاؤ، کتنے تمہارے مدرسے سے اب تک عالم فارغ ہوئے، سند دکھاؤ، پہلے سند دکھاؤ، ثبوت دو، پکا ثبوت دو، اور وہ عالموں سے ہماری بات کراؤ، جن عالموں کو تم بتا رہے ہو یہاں سے فارغ ہیں، ان سے بات کراؤ پہلے، تاکہ ان کی ریکارڈنگ ہم لیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یا سچا بول رہا ہو۔
हजरत 25 साल हो गए एक मदरसे को। हाँ हल्द्वानी में नूरी मस्जिद का मदरसा है, हाँ मदरसा फैजान नूरी। हाँ 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 25 साल में 2 हाफिज बने हैं, वो भी अब पिछले साल। 25 साल में 25 साल में पहली मर्तबा वहाँ दस्तारबंदी का प्रोग्राम हुआ। अरे यही तो वो साजी डेड़ा वाले ने किए थे, भीतले कुंड में मदरसा कायम किया था उसने, तो वो भी ऐसी इधर उधर से बुलवा बुलू के उसने दस्तारबंदी करा दी थी हाफिजों की, जो आप कह रहे हो ना, ऐसा इसने किया था कोटा राजस्थान में कि तो यहाँ जलसा कराया था इसने, और फिर इसकी मुखालिफत हुई थी कि भाई बाहर के बच्चे लाके जलसा करा रहा है, चंदा उगा रहा है, गोटे गोटे पे गोटे ये गोटे करने का तरीका है वो राजस्थान में। ये गोट में कम से कम 4-5 लाख बचा सकते हैं आराम से, अगर ज्यादा आदमी है जाए तो ये पहले कुशेरपुरा में था, वहां से इसको भगाया गया, कोई चक्कर गड़बड़ था। तो अब ये भी कर रहे हैं कि लड़कियों के मदरसे भी खोल रहे हैं, ये आजकल के नई पीढ़ी के आलिम। ये क्यों खोल रहे हैं मालूम है? क्यों खोल रहे हैं लड़कियों के मदरसे? कुछ मालूम है इस बारे में? हाँ, वो अभी एक केस हुआ तो था पिछले साल। कहाँ का? ये मैं क्या जेल में है अभी वो मौलाना। हाँ, वो तो मशहूर मौलवी है, इंडिया में मशहूर था, गुलाम जिलानी अजहरी, खंडवा का नेपाल खंडवा में चलाता था लड़कियों का मदरसा, और बहुत कम उम्र लड़की उसने बुला ली थी, कम उम्र की, शादीशुदा भी नहीं होगी यार, तो उसके बाद वो हरामखोरी करता था, पकड़ा गया, आज जेल में है, कर्नाटक की जेल में है। हाँ, जेल में है वो भी। और ऐसी ही आपके हल्द्वानी के पास एक सुल्तानपुर पट्टी है, ये काशीपुर के पास है। हाँ, मैं खुद देखा उस आदमी को जो चलाता था, उसके बारे में बताया कि वो एक पढ़ाने वाली से बम्बई से बुलवा ली थी, बम्बई की लड़की को, जवान लड़की को, तो वो पढ़ाती थी, तो उसको साथ में लेके फिरता था वो मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे। लोगों ने कहा ये ऐसे तू क्यों रख रहा साथ में, जब तेरी ये बीवी नहीं है, फिर ये ऐसे क्यों तू अपने साथ में घुमाता है गाड़ी पे? कह रहा दवा दिलाने ले जाता था, दवा दिलाने। तो तू दवा दिलाने वाला कौन होता है गाड़ी पे बिठा के ले जाकर? अब बताओ, जो आदमी सरेआम गाड़ी पे घुमा सकता है, वो अंडरग्राउंड क्या करेगा लड़की के साथ? समझ लो ये बहुत नहीं बात, जो इतना पब्लिक के सामने लड़की को घुमा रहा है, तो वो समझ लो। तो ये जो आजकल लड़कियों के मदरसे खोल रहे हैं ना, इनका मकसद ही ये है कि ये लड़कियों से कांटेक्ट कर लें, फिर ये अंडरग्राउंड फिर कांटेक्ट करके उसको बुलवा लेंगे घर पे, या खुद चले जाएंगे और पैसे का लालच दे देंगे उसको, 50,000 डलवा देंगे अकाउंट में, 1 लाख डलवा देंगे, फिर हरामखोरी शुरू। तो इसलिए मेरी अपील है, क्या है वो हल्द्वानी में खोले, या रामनगर में, रामपुर में, कोटा में, साजीडेड़ा में, बूंदी में, कहीं भी कोई मदरसा लड़की का खोले तो पूरी पब्लिक चली जाए वहां पर, कि तू कौन होता है मदरसा खोलने वाला लड़की का? तूने क्या हमसे शहर वालों से मशवरा किया? तू होता कौन है? तूने किससे मशवरा करके मदरसा खोला है? नहीं, लेडीज अगर मदरसा अगर खुलेगा लड़की का, तो शहर के लोग इसमें निगरान रहेंगे, बूढ़े लोग। हाँ, बूढ़े लोग निगरान रहेंगे। तुम्हारा कोई निगरान नहीं रहेगा, तुम्हारा निगरान नहीं रहेगा, निगरान हम मुकर्रर करेंगे, क्योंकि तुम्हारा निगरान होगा तो तुम्हारी कोई भी कमी होगी तुम उसे खिला पिला के मुंह बंद कर दोगे आपस में। क्योंकि ये निगरान अपने मुकर्रर करते ना, कोई गलती देखेंगे तो अपनी शुबह छुबू लेंगे आपस में, वो भी हरामखोरी करेगा, हम भी हरामखोरी करेंगे, पैसा खाएंगे और भी हरामखोरी। तो इसी शहर वालों को चाहिए कि वो आ जाएं और कहेंगे नहीं, आपका आदमी निगरान नहीं रहेगा, हमारे आदमी निगरान रहेंगे, रात में अलग, दिन में अलग, औरतें औरतों में निगरान रहेंगी, बच्चे बच्चों में, मर्द निगरान रहेंगे, रात के अलग, दिन के अलग, दिन में भी निगरान रहेंगे, रात में भी, ताकि कोई बच्चा बच्ची हरामखोरी तो नहीं कर रहा आपस में। देखो ना, वो अजमेर शरीफ में एक आया था, वो कारी इमाम, वो लड़के को ले आया तो रामपुर से, और हरामखोरी करता था वहां पर, वो अजमेर शरीफ में जो मारा गया ना इमाम को, समझ गया बात आपको? जी। तो ऐसे में कितने मदरसे बता दूं, ये लड़कियों को मदरसे खोले हैं जिन्होंने हरामखोरियां की, पकड़ाए गए हैं। किला खेड़ा में एक इमाम को इसी चक्कर में भगाया गया था, वो लड़की से कांटेक्ट कर लिया था उसने, तो फतवा आ गया बरेली से कि भाई इसके पीछे नमाज नहीं होगी। हाँ, ये बहुत अय्याशी कर रहे हैं उसकी आड़ में, मदरसे की आड़ में अय्याशी करते हैं। जवान लोग क्यों खोल रहे मदरसे? पब्लिक, मैं कह रहा हूँ पब्लिक इतनी सोचती क्यों है कि जब खुले मदरसा फौरन पहुंच जाएगा। आपने किससे पूछा लड़कियों को मदरसा खोलना हो? ये बताओ आपने जो मदरसा खोला है इसमें जिम्मेदार कौन है? और आप पूरे जिम्मेदार नहीं बनोगे इसमें, हमारी शहर के लोग होंगे, कमेटी का हिसाब लेंगे पूरा एक एक पैसे का, आप पूरे सर्वे सर्वा नहीं होगे। वो कौम का पैसा है, आपने मदरसे की प्रॉपर्टी अपने नाम क्यों की? ये भी कौम पूछ सकती है कि जब पैसा तुम दुनिया भर से ले रहा हो, चंदा ले रहा हो, तो तुमने ये अपने नाम क्यों किया मदरसे को? ये भी कौम मदरसों का जो हिसाब था ना, ये दीन फैलाने के लिए था।
अब तो पेट भरने के लिए हो गया आमतौर से, मगर ये कारोबार बना दिया, एक बिजनेस बना दिया ये। अब तो कौम भी इतनी सो गई है कि ये कह दे मीटिंग कर ले कौम के लोग, कोटा वाले कर ले, बूंदी कर ले, बारा वाले कर ले, अंता वाले कर ले, छबड़ा वाले कर ले, सब लोग कर ले, जयपुर वाले, कि भाई अब इन मदरसे वालों को चंदा नहीं देना है, क्योंकि ये तो अपना पेट भर रहे हैं। आज जो सही मदरसे चल रहे हैं उनको दो, जो सही चल रहा है वहाँ दो, जिनके बारे में यकीन हो। जैसे कोटा में एक सही मदरसा चल रहा है, मुझे यकीन है उस पर अपनी ईमानदारी चलता है। दारुल वो है गौसिया वक्फ नगर चंबल गार्डन में, वहाँ के जो कमेटी वाले हैं तो वो अपना पैसा इकट्ठा करके नाश्ता करते हैं। जब मीटिंग होती है ना तो वो अपना पैसा, वो मुझे बताया तो उन्होंने बताया था हम लोग कमेटी वाले आपस में चंदा कर लेते हैं, फिर वो पैसा रख लेते हैं, तो उससे ही हम नाश्ता चाय पानी करते हैं, यानी मदरसे का पैसा इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो वो 100% इस जमाने में ईमानदारी से चल रहा है। 100 मान लो या थोड़ा कम मान लो, लेकिन ज्यादातर वो ईमानदारी से चल रहा है। जी जी जी। ऐसे मदरसे में कमी है जिनको मैं कह सकता हूँ कि आप आंखें बंद करके चंदा दे सकते हो, कम है ऐसे मदरसे। हाँ कम है। ये जैसे हमारे हल्द्वानी में है ना, एक मौलाना मुकीम कासमी है। हाँ हाँ हाँ, उनका मदरसा है, वो मस्जिद है अलउमर। हाँ, और मदरसा है, मदरसा अलउमर मस्जिद का मदरसा है, मदरसा उमर फारूक। हाँ, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु के नाम से। हाँ, हाँ। तो वो हर साल हाँ 5 से 7 बच्चे करीब हाफिज होते हैं हर साल। अच्छा अच्छा, हर साल 5 से 7 बच्चे तैयार कर देते हैं वो हाफिज। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। और चंदा हजरत एक बार में लेट हो गया था थोड़ा, मैं जब गया रसीद काटने तो मौलाना ने कहा कि ये कहीं और दे दो, हमारा जो जितना हम लेते हैं उसका हमारा कोटा फुल हो गया। अच्छा, हाँ, बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत बड़ी बात। वो एक लिमिट के हिसाब से लेते हैं कि हमें इतना करना है। एक खास बात सुनो, ये अपील हो जाए हमारी तरफ से, आपकी तरफ से चैनल में डल जाए कि जो भी लड़कियों का मदरसा खोले तो शहर के सब लोग एकदम उस मौलवी के पास पहुंच जाए। जैसे गदरपुर में खोले तो गदरपुर में पूरे के पूरे लोग शहर के इकट्ठे होकर सब पहुंच जाए। अगर जुमे में ऐलान करवा दे इमाम साहब से, इमाम साहब ऐलान करो, सब लोग उस मौलवी के पास जाएंगे जो लड़कियों का मदरसा खोल रहा है। खास लोग जाएंगे, कोई गदर नहीं हो, कोई नहीं, कि खास समझदार लोग, यानी मशवरा करके उससे पूछेंगे कि तुम्हें किसने परमिशन दी है कि आप लड़कियों का मदरसा खोलो अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए, है कि साहब वो तो हमारी जमीन है, हमने खरीद के बनाना, तो तुम अपनी जमीन खरीद के या अपनी जमीन पे क्यों बनाना चाहते हो, क्या मकसद क्या है तुम्हारा, पहले ये बताओ आप। क्या लड़कियों को बुला के तुम हरामखोरी करोगे? अगर तुम्हारी जमीन है, जब भी तुम्हें मदरसा नहीं खोलने देंगे लड़कियों का, इसलिए कि तुम फिर कांटेक्ट करके लड़कियों से हरामखोरी करने लग जाओगे। अगर तुम्हें खोलना है कोई मना नहीं है, हमारी कमेटी बस्ती के लोग इसमें जिम्मेदार होंगे, जब तो खोल लेना, वरना तुम खोलने की हिम्मत मत कर लेना लड़कियों का मदरसा। अगर तुम खोलना खोलो, लेकिन जिम्मेदार हम बस्ती वाले होंगे और परहेजगार नेक लोगों को यहाँ रखा जाएगा जिम्मेदार। ऐसे में हजरत भी करते ये हैं और पूरी कौम बदनाम होती है। कितनी जगह मैं बता दूं, ये इलाहाबाद में मेरी तकरीर हुई है, जहाँ पर कई बार इलाहाबाद में तकरीर हुई है, लखनपुर में, बख्शी मोड़ा में, मैंने खुद देखा मदरसा। वो मदरसा रास्ते नहीं पड़ता था, इलाहाबाद से थोड़ा आगे है, करेली से आगे 3-4 किलोमीटर होगा करीब। बख्शी मोड़ा से पहले ही मदरसा था लड़कियों का, वो था देवबंद वालों ने खुलवाया था वो लड़कियों का, तो उसमें भी मैं यही लड़कियां गायब हो गई थी वहां से। आज भी वो जाके मदरसा देख सकते हैं, ऐसे पड़ा हुआ बंद हो गया था। तो उसमें मैंने खुद देखा ना, वो इलाहाबाद का मदरसा, वो ये वहाँ के गुंडों ने लड़कियों को उठा के ले गए थे रात में वहां से। और भी जगह के वाकयात हैं। अब मैं आपको याद आ गया तो बताता रहूंगा कहाँ कहाँ लड़कियों के मदरसे खुले और हरामखोरी के मामला हुए। हाँ, ये सही जो चल रहा है, रामपुर का मदरसा चल रहा है, जामियातुस सालिहात है ना रामपुर में लड़कियों का, सबसे पुराना यही है दुनिया हिंदुस्तान में, जामियातुस सालिहात गालिबन सबसे पहला इदारा यही है। वहाँ बहुत पूरी बाउंड्री लगी हुई है, कोई आदमी घुस नहीं सकता है, सिर्फ बाप जा सकता है या चचा या उसका सगा भाई, और वो भी लड़की से बात कराएंगे तो आपको यानी खिड़की के जरिए से कराएंगे, बाप से तो मिलने देंगे, बाकी औरों को परमिशन नहीं। रामपुर में जो जामियातुस सालिहात है ना वहाँ पर, और चारों तरफ से बाउंड्री, और फिर बाउंड्री पर बाउंड्री समझ लो, फिर अंदर जो लड़कियों का है वो और बहुत बड़ा पर्दे का पूरा इंतजाम है वहाँ पर। और ऐसे ही मालेगांव में लड़कियों का बहुत शानदार मदरसा चल रहा है लड़कियों का,
और एक रत्नागिरी में चलता है इमाम, वो जो रत्नागिरी में इमाम अहमद रजा के नाम से है। तो इन मदरसों को हम कह सकते हैं कि ये बहुत पाबंदी से चल रहे हैं। लेकिन बाकी जो आजकल छोटे छोटे खोल रहे हैं लोग बाग, इनका भरोसा नहीं है साहब। ये क्या है, ये खुद मिलने लगते हैं लड़कियों से, घर में बुलाने लग जाएंगे, वहां जा। अरे यार तुम इसलिए खोलते हो लड़कियों के मदरसे के, घर में बुलाओ खुद जाओ तुम, है क्या है, क्या तरीका लगा रखा तुम लोगों ने। बस से शहर के लोग कहेंगे लड़कों का भी खोलो, लड़कियों को किसी का भी खोलो, शहर के लोग जिम्मेदार रहेंगे और रात दिन ड्यूटी भी देंगे, क्योंकि अभी हरामखोरी के मामला बढ़ रहे हैं, शैतान सवार होता जा रहा है। यहाँ पर निगरान रात का हमारा रहेगा, शहर का रहेगा, दिन का अलग रहेगा, शहर का अलग रहेगा। और ये पूरे बच्चों को जो भी पढ़ाने वाला है, कोई भी अपनी खिदमत के लिए बुला नहीं सकता है, उसको अलग से नहीं बुला सकता है। ये पाबंदी शहर के लोग लगा दें कि आप खिदमत के लिए लड़के को नहीं बुलाएंगे, आप खुद अपना काम करो। लड़के पढ़ने के लिए आए, तुम्हारी खिदमत करने के लिए नहीं आए। ये लोग क्या करते हैं, खिदमत करने के लिए घर में बुलाने लगते हैं लड़कों को, यानी क्या क्या करने लगते हैं तो सारे। समझ बात आप। हजरत सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, आजकल जो लोग मदरसे बना रहे हैं, उस जमाने में कहा था 150 साल पहले, ये अपनी जायदादें बना रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी बना रहा है। और आज देख लो वही हो रहा है, जो मदरसा बनाता है वो अपनी प्रॉपर्टी कर लेता, अपने नाम कर लेता जी। वो जो कमेटी बनाता है ना, वो उसके यार दोस्तों की बनाता है या उसके चुंगल में जो रहते हैं उनकी बनाता है, ताकि लोग समझे कमेटी है, सदर है, सेक्रेटरी है, खजांची है और ये है वही है, इनकी खास होते हैं। जब चाहे निकाल दें, जब चाहे उनको रख दें। उन्हें भी लालच देते हैं, उन्हें भी लालच देते हैं। उनको अंडे मुर्गे खिला देते हैं, बकरे मुर्गे खिला देते हैं, बिरयानी खिला देते हैं, गोश्त कौरमा खिला देते हैं। बेचारे वो खा भी लेते हैं हराम का, वो तो उनके लिए हराम है ना। मदरसे के पैसों का तुम्हें खिला रहा हो कमेटी वालों को, तो वो तुम्हें हराम, हलाल कहाँ से हो जाएगा, हराम ही है वो। मगर खाने वाले भी ऐसे खा लेते हैं जी, खाने वाले भी हैं। नहीं कहते मौलवी साहब ये तुम जो हमें खिलाना चाह रहे हो ना, हम कभी नहीं खाएंगे, ये सिर्फ मदरसे के पैसों का है, मदरसे के बच्चों के इनाम का है, हमारा नहीं है। जो तू हमारे लिए 2 किलो बकरे का गोश्त मंगाना चाहता है कि खुश कर दे, अगर कट्टर ईमान वाले हो ना कमेटी वाले और हर जगह के शेर वाले, तो कह सकते हैं सर। मगर ऐसे ईमान वाले कहाँ हैं जो अब ये कह देंगे साहब ये मौलवी साहब हम नहीं खाएंगे मदरसे के पैसे। ऐसे तो 100 में से 1-2 ही है साहब आजकल। ना आजकल है कहाँ ऐसे लोग, 100 में से 2-4 ही हैं ना। वो देखते नहीं है कैसा है खाना कैसा नहीं है, वो खाने से मतलब है। वो खाने बिरयानी वो अच्छी बनवा देगा, बकरे के गोश्त की 2 किलो की बिरयानी, 2 किलो का कोरमा बकरे का, और जर्दा अच्छा देसी घी में काजू बादाम डलवा देगा, खुश हो जाएंगे कमेटी वाले बस जी। लेकिन ऐसी कमेटी जो मैं बता रहा हूँ जो अपने ही खाती है, वो है दालू गौसिया बख्श नगर में, जो अपने ही पैसों का खाते हैं। ये परहेजगार लोग हैं वहाँ पर शेरे कोटा हजरत मौलाना शब्बीर अहमद साहब हैं जो अब्बासी हैं, वो बहुत परहेजगार हैं और चेहरा भी लगता है उनका ईमान वाले हैं, चेहरा से भी जाहिर होता है, चेहरे पे उनके वो है रौनक। शेरे वो हैं, शेर हाड़ोती हजरत मौलाना शब्बीर अहमद साहब दालूम वक्त के, वो गौसिया के वो सदर हजरत मौलाना, और जनाब हशमत अली साहब है, वो भी बहुत, ये सब कमेटी ईमान वालों की। और बाकी जो है कि और जगह भी हैं कोटा में जो सही, लेकिन वो मेरी नजर में भी आएंगे जब बताऊंगा। एक वो मस्जिद का बता सकता हूँ, एक मस्जिद है मीर वाले बापे, वहाँ है मुजाहिद मिल्लत हजरत जनाब मोहतरम हजरत शाहिद अली खान साहब, जो अभी वहाँ के सदर हैं, और बहुत बड़ी मस्जिद उन्होंने मीर वाले बाप की बना दी है, 30 बार बनी है। अब तो वहाँ पर 4-5 हजार आदमी आराम से नमाज पढ़ सकता है। पहले तो जो 4 से 5 ही पढ़ सकते थे मुश्किल से, अब आराम से 4 या 5 हजार आदमी नमाज पढ़ सकता है पूरे ग्राउंड में, आसपास मिला के सब जगह, ऊपर नीचे मिला के 4-5 हजार आदमी। वो है मुजाहिद मिल्लत कोटा की खास शख्सियत हजरत जनाब मोहतरम हजरत शाहिद अली खान साहब, बहुत कम उम्र है, अभी ज्यादा उम्र नहीं, अभी शादी हुई है उन्होंने बहुत बढ़िया तामीर, और वो ईमानदारी से चलाते हैं। यानी ऐसे चलाने वाले लोग हैं अभी कम है, मगर कम है। एक वो विज्ञान नगर में थे जनाब मोहतरम GM टेलर साहब, वो बहुत ईमानदार आदमी थे, वो मस्जिद की चाय भी नहीं पीते, वो चंदी थे। तो विज्ञान नगर की कमेटी तो अभी ईमानदार है, मुझे मालूम है, मैं जाता था, लेकिन मुझे ऐसा यकीन है वहाँ के लोग ईमानदार हैं। तो जो ईमानदार हो मदरसे चला रहा है ईमानदारी से, एक एक पैसे का हिसाब, मतलब है कि पैसा कितना आया, कहाँ खर्चा हुआ, वो हिसाब कमेटी वाले रखें, और कमेटी वाले जो उस पर ही भरोसा किया जाएगा जो उसकी पैसा खाते ना हो, एक में यानी चाय तक न पिए तो उन कमेटी वालों पर भरोसा किया जाएगा जी। उन कमेटी वालों पर भरोसा नहीं जो बकरे मुर्गे खा के उसी मौलवी के जैसा बन जाए। जब वो बकरे मुर्गे खाएंगे तो वैसे ही हो जाएंगे,
हाँ वैसे हो जाए। वो जिसके बारे में यकीन हो कि ये कमेटी वाले मदरसे की चाय भी नहीं पीते, तब समझ लो कि फिर वो मौलवी चंदा नहीं खा पाएगा। समझ गए बात आपको? जी जी। मैं इसलिए समझा के कहता हूँ ताकि कौम होशियार हो जाए। जैसे अभी हमारे एक मुरीद है कोटा में, मुजाहिद मिल्लत जनाब शाहिद अली साहब, जो अमीन पठान साहब हैं उनके खास हैं वो। जनाब अमीन पठान साहब वहाँ के लीडर हैं बहुत बड़े, उनके वो खास हैं। तो उनसे मैंने कहा कि चंदे के बारे में, वहाँ के जो सखी है, राजस्थान के सखी हैं बहुत बड़े, और पूरे राजस्थान में कहीं भी मस्जिद बने उनकी तरफ से सरिया आप ले सकते हो। पूरे राजस्थान में मस्जिद के लिए सरिया ले सकते हो। बताओ कितने देते होंगे, यानी करोड़ों रुपया देते हैं, समझ लो। हाँ बिल्कुल। यानी अब पूरे राजस्थान में कितनी मस्जिद बनेंगी? वो देवबंदी बरेलवी सब मस्जिदों को देते हैं। कोई भी मस्जिद बनाए, मस्जिद बनाने वाला हो, बस देवबंद हो बरेली हो सबको देते हैं। जैसे गणेश नगर में देवबंद वालों ने बनाई, अमृत नगर के पास देवबंद वालों ने बनाई, ये चंदा मत दिया उन्होंने। ऐसी विज्ञान नगर में बन रही है, कम से कम 50 लाख का सरिया लग रहा होगा उनका, कम बेश बहुत बड़ी मस्जिद, 50 लाख या 40 लाख के आसपास का सरिया लगेगा, पूरा सरिया उनका। और भी जब शहर में कहीं भी मस्जिद बने या आसपास, वो उनका तरफ से सरिया है। तो वो हजरत सखी कोटा, हजरत जनाब मोहतरम हजरत मोहम्मद मियां साहब नब्बरल्लाहु वजहू, बहुत बड़े आदमी हैं। तो मैंने हमारे मुरीद से कहा कि जरा उनसे मिला देना इनको, कुछ चंदा मंदा मिल जाए साहब के लिए। तो कह रहे साहब हजरत उन्होंने तो कसम खा ली। क्या कह रहे? उन्होंने तो कसम खा ली कि अब मैं मदरसे में चंदा ही नहीं दूंगा। अच्छा। अरे अब जब कसम खा ली तो फिर कहना ही बेकार है। कहना साहब उन्होंने तो कसम खा ली कि अब मैं मदरसे में चंदा नहीं दूंगा। अरे क्यों खाली? कि वो मजबूर हो गए ना कि आज देते देते समझने लग गए कि तो हम कहते ये हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी बना लेता है जिसको हम चंदा देते हैं। यानी वो जैसे आदमी देता है ना, कहीं भी देता है चंदा, तो सोचता है कि भाई मदरसे में लगाओ, काम चलाओ, और तुम हमसे लो, किसी और से मत लेना, या पढ़ाई करो, आप कोई कमी आए तो हमें बताओ। इतना सब कुछ कह रहा है, उसके बावजूद आदमी फिर अपना धंधा अलग से करे तो वो तो दिल टूटेगा ना। सही बात। तो वो हमारा मुरीद बता रहे थे जनाब शाहिद अली साहब, जो कोटा के बहुत खास हैं, और झूले वाले जो हैं छावनी में उनके वो दामाद हैं, मुन्ना भाई झूले वाले, बहुत बड़ी आदमी है। मुन्ना भाई भी बहुत काबिल आदमी है, उनके दामाद। तो कह रहे साहब हजरत उन्होंने तो कसम खा ली कि अब मैं नहीं दूंगा मदरसे को चंदा। अब फिर यानी कसम खा ली तो क्या फायदा फिर उनके कहने से? यानी वो मस्जिद में तो दे देंगे, लेकिन मदरसे में, और मस्जिद में भी है कि सरिया पहुंचा देंगे, सरिया पहुंचा देंगे। सरिया आप लगवा लो, मस्जिद बनाओ, दे देंगे वो, लेकिन आप चंदा लेने आओ तो नहीं देंगे फिर, क्योंकि वो चंदा देते देते समझ लो आज ही आ होंगे ना यार। जो देखो चंदा लेने आ रहा, डायरी लेके आ जाता है, समझता है ना कि ये आदमी लाखों रुपए देते हैं, लाखों का चंदे तो हर आदमी जाना चाहता है ना, बड़े बड़े चंदे वाले। बिल्कुल। तो अब वो उन्होंने तय कर लिया कि मैं मदरसे में नहीं दूंगा, वो मस्जिद में दे दूंगा, यानी मस्जिद कहीं बन रही है उसमें दे दूंगा। समझ गए आप बात? जी। तो ऐसे चंदा देने वाले हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बड़ी तादाद में है, लेकिन दिल टूट गया कि यार अब किससे दें यार, किस पे भरोसा करें। तो मैं भरोसा करता हूँ कि तुम खुद मदरसे बनाओ, तुम खुद आलिम बुलाओ, तुम बनाओ मदरसे, और ईमानदार लोगों को रखो जो 5 टाइम के पक्के नमाजी हों, हलाल रोजी खाने वाले हों। और ये देखो कि ये चाय भी नहीं पियेंगे, तो आप कमेटी ऐसी को लोग बनाओ जो चाय भी नहीं पिए मदरसे की। समझ गए बात आप? जी। फिर देखो मदरसा चले नहीं चले तो मुझसे कहना आप पहले आप ईमानदार लोग तो रखो कमेटी में। आज भी बरसात की तरह से पैसा आ जाएगा, आज भी। जी जी। देखिए कौन को यकीन तो हो कि यार कहाँ हम पैसा दें, किस जगह दें, कहाँ भरोसा करें। मैं कह रहा हूँ आज भी चंदा करोड़ों अरबों रुपया आ जाएगा, लेकिन जब के यकीन तो हो जाए लोगों को कि हाँ वो एक पैसे की भी चाय नहीं पीते हैं, वो मदरसे की चाय नहीं पीते हैं साहब, एक पैसे का नहीं खाते, वहाँ का नमक भी नहीं खाते मदरसे का। यानी पक्के नमाजी, हलाल रोजी के पाबंद, ऐसे यकीन हो कि ये शहर में हलाल रोजी खाते हैं, ये बिल्कुल एक पैसा नहीं खाएंगे और देंगे, खाएंगे भी नहीं, यानी चाय भी नहीं पियेंगे कभी बैठ के कि हम कमेटी वाले तो चलो चाय पीना जायज कर लें, उसको जायज नहीं समझेंगे हमेशा के लिए। समझ गए बात आप? जी जी। अब मैं कह रहा हूँ कि शहर कोटा के लोग, जयपुर के लोग, राजस्थान के लोग, हल्द्वानी के लोग, रामपुर के लोग, रामनगर के लोग, कोई भी मदरसे वाला है उसे बैठाओ कि कहाँ से आया तू? कि बिहार से आया। कहाँ से आया तू? मुरादाबाद। हम क्या करने आया तू? कि दालूम बनाया। क्या है दालूम का क्या मतलब है, तुझे मालूम है दालूम का? अरे वो दालूम यहाँ पढ़ाई, अरे क्या पढ़ाई, क्या दालूम का मतलब बता। दार माने घर, दार माने घर, उलूम माने उलूम, उलूम प्लूरल है, इल्म की जमा, इल्म सिंगुलर है, उलूम प्लूरल है। उलूम का घर
تو کون سا علوم پڑھایا جا رہا ہے تیرے دارالعلوم میں، یہ بتا تو صحیح۔ دارالعلوم کا مطلب ہوتا ہے کہ الف سے لے کر بخاری شریف تک جہاں پڑھائی ہوتی ہو، پڑھانے والے بھی بڑے بڑے عالم ہو، ایک عالم نہیں، کم سے کم 8-10 عالم پڑھانے والے ہوں کم بیش، اور بخاری شریف کو ایسے پڑھائیں کہ لوگ سمجھیں، شہر کے لوگ کہ یار واقعی میں بخاری شریف پڑھائی جا رہی ہے، یعنی ایک عالم نہ ہو، کم سے کم 8-10 عالم ہو، اور پڑھنے والے بچے بھی 100 کے قریب ہوں عالم کورس میں کم بیش۔ یہ حضرت جیسے دارالعلوم دیوبند ہے نا، ہاں، اور ایک مدرسہ اسلام، اور 1-2 مدرسے اور بھی ہیں 2-4 بڑے، یہاں تو ہو رہی ہے پڑھائی؟ نہیں، مظہر اسلام میں تو نہیں ہو رہی، زیادہ خاص مظہر اسلام میں اب اچھی ہو رہی ہے کہ وہ شارح بخاری عالم عاقل العلماء استاد العلماء حضرت مولانا مفتی عاقل صاحب جو پرنسپل ہے شیخ الحدیث ہے منظر اسلام کے، وہ علمت آنے کے بعد، ان کے آنے کے بعد وہاں کا معیار بہت بلند ہو گیا ہے منظر اسلام کا۔ تو پہلے وہ جامعۃ الصغیریہ میں تھے، وہاں پر جامعۃ الصغیریہ میں تھے وہاں پر، پھر وہاں سے جب آئے ہیں تو منظر اسلام جو ہے اس وقت معیار بہت بلند ہے ان کے آنے کے بعد، اور وہ سخت بہت ہے، سخت اتنے ہیں کہ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ حضرت مولانا عبدالسبحان رضا صاحب جو وہاں کے سجادہ نشین ہیں خانقاہ اعلیٰ حضرت کی فضل بریلوی کی مزار کے، تو کہہ رہے کوئی اگر بچے چلے جائے کہ صاحب ہمیں داخلہ کرا دو صاحب، یہ ایسا ہوا مدرسے میں یہ کچھ سفارش کر دو، تو کہہ رہے نہیں وہاں کے لیے میں سفارش نہیں کروں گا منظر اسلام کے لیے، وہ تو بھائی مفتی عاقل صاحب کا کہنا، تم اور کچھ کام بتاؤ تو میں مدد کر دوں تمہاری، مگر منظر اسلام کے معاملے میں میں دخل اندازی نہیں کروں گا نا، یعنی مطلب یہ کہ ہم نے ان کے ذمہ چھوڑ دیا ہے، جسے چاہے رکھیں یا ہٹائیں یا بچے کو نکالیں، کہا کہ اس بارے میں ہم سفارش نہیں سنیں گے تمہاری، ایک صاحب نے ایسا بتایا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو سمجھا دیا ہے کہ وہ اچھا سمجھتے ہیں کون بچہ کیا غلطی کر رہا ہے، کہ آگے ہم سفارش نہیں کریں گے اس معاملے میں، یعنی مطلب ان سے خوش ہیں، خوش اتنے ہیں کہ وہ بہت سمجھتے ہیں کہ کون کس طرح سے مدرسہ چلے گا، دارالعلوم چلے گا، یعنی ان کے معاملے میں وہ دخل اندازی دینا نہیں چاہتے، سمجھ گئے بات؟ تو اب یہ جامعۃ الصغیریہ چل تو صحیح رہا ہے، پڑھائی تو اچھی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہے تو اس کے قبضے میں، پورا تو وہ قابل ہوا ہے، پورا تو اس نے اپنی پراپرٹی اپنے نام کر لیا جامعۃ الصغیریہ کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں سے عالم بہت فارغ ہوئے ہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، لیکن جب تو نے اپنے نام پوری پراپرٹی کر لی، چندہ ہے دنیا بھر کا مدرسے کا مسلمانوں کا، اور تو اپنے نام کرنے والا کون ہوتا ہے یہ بتاؤ پہلے؟ جی یہی ہو رہا ہے۔ حضرت سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اپنے نام کیا یونیورسٹی علی گڑھ کو، آج علی گڑھ یونیورسٹی میں مجھے معلوم ہوا ہے کم سے کم 12,000 نوکر ہیں، کم بیش 12,000 پڑھانے والے، کم بیش نوکر ملا کے سب ملا کے، اب 12,000 کی تنخواہ کتنی ہو گئی، 1-1 لاکھ کے حساب سے سمجھ لو کتنی کروڑ تنخواہ مل رہی ہے ان کو، 1-1 لاکھ کے 50,000 70,000، کتنا بڑا احسان ہے امت کے اوپر ان کا۔ غلطیاں تو ہوئی ہیں ان سے، ارے ہم مانتے ہیں غلطیاں انسان سے ہی تو ہوتی ہیں، تو غلطیاں ایسی غلطیاں نہیں ہیں کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہو، اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کیا ہو، اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتے تھے، قرآن کو ہی مانتے تھے، حدیث کو ہی مانتے، ہاں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ایسی جس سے لوگوں نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا، لیکن وہ ایسا کفر نہیں ہے، وہ کفر دوسرا ہے، سمجھ گئے؟ ایک تو کفر ہوتا ہے کھلا کفر، جیسے نماز سے انکار کرنا، روزے سے، زکات سے، حج سے انکار کرنا، تو وہ تو بہت بڑا کفر ہے، وہ تو معاف نہیں ہوتا ہے۔ ایک کفر ہوتا ہے جیسے محمد رفیع نے گانا گایا، خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا، اس میں ایک ساتھ 5 کفر ہیں، لیکن یہ کفر ایسا ہے کہ اس کو ہم کفر تو کہیں گے لیکن سامنے والے کو کافر نہیں کہیں گے جب تک کہ وہ موجود نہیں ہے، اگر موجود ہوتا وہ اقرار کرتا جو گایا ہے صحیح گایا ہے تو پھر اس کو کافر اصلی کہا جاتا ہے، ابھی تو گانے کو کفریہ قرار دیا جائے گا لیکن اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، سمجھ گئے بات آپ؟ جی حضرت شیخ حسین منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان الحق کہا، علماء نے فتویٰ لگایا کفر کا، اور ان کو سولی دی گئی، کفر کا فتویٰ لگایا تو علماء نے تو لگایا، بڑے بڑے عالم تھے اس زمانے کے 1000 سال پہلے کے، اور یہ دیوبند والے بریلی والے دونوں ولی مانتے ہیں، اب دیوبند بریلی والے کیوں ولی مان رہے ہیں؟ ان کی تو توبہ بھی نہیں ہے، ان کی توبہ بھی نہیں، کہیں بھی نہیں لکھی توبہ، لیکن محض ایک حسن ظن کی بنا پر کہ اللہ کے ولی تھے، بعد میں ان کی ولایت ظاہر ہوئی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ نوافل زیادہ پڑھتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، تو وہ ان الحق ان کے منہ سے جو نکلا وہ اللہ کی آواز تھی، ان کے منہ سے نکلی، اللہ فرماتا ہے نا میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے۔ جی جی تو ایسا واقعات ہوتے ہیں اولیاء کرام کے، تو ان کو تو حسن، اب تھانوی صاحب کے کیوں پیچھے پڑے،
جب تھانوی صاحب کی توبہ بھی مشہور ہے، تھانوی صاحب نے رجوع بھی کیا اس عبارت سے بار بار اسی کے پیچھے، تو پھر حسین منصور اللہ کو ولی کیوں مان رہا ہو؟ پھر ان کی تو توبہ بھی نہیں ہے، ان کی تو توبہ بھی نہیں ہے، محض گمان کی وجہ سے تو ولی مان رہا ہوں۔ دونوں ولی مانتے ہیں، دیوبند والے بھی ولی مانتے ہیں، بریلی والے بھی ولی مانتے ہیں، حضرت حسین منصور اللہ رحمۃ اللہ ہم بھی ولی مانتے ہیں، بہت بڑے ولی مانتے ہیں، تذکرۃ الاولیاء میں ان کا تذکرہ ہے، لیکن ان کی توبہ ہے نہیں، کہیں بھی نہیں ہے توبہ، نہ رجوع ہے اس جملے سے، ان الحق کہنے سے، سمجھ گئے بات آپ؟ لیکن یہ تھانوی صاحب کیسے پیچھے پڑ جاتے ہیں ہاتھ دھو کے کہ جیسے ان کے بغیر ان کا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا ہو، سمجھ گئے بات؟ اختلاف کا ختم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اختلاف تو ختم یوں نہیں ہوگا کہ پھر بکرے کیسے ملیں گے، مرغے کیسے ملیں گے، انڈے کیسے ملیں گے، بریانی کیسے ملے گی، زردہ کیسے ملے گا، قورمہ کیسے ملے گا، حلوہ کیسے ملے گا، 50,000 روپے کی تقریر کیسے ملے گا، 40,000 کیسے ملے گا، 30,000 کیسے ملے گا، 20,000 روپیہ کیسے ملے گا، 20,000 روپیہ ایسے ہی تو ملے گا کہ دیوبندی نے یہ لکھا، دیوبندی نے وہ لکھا، ایمان میں لکھا، تقویت الایمان میں لکھا، انہوں نے ایسا لکھا، انہوں نے ویسا لکھا، اسی وجہ سے تو 50,000 ملے گا، سمجھ گئے بابا؟ یہ حماد رضا مراد آبادی کہتا ہے کہ فرشتہ لنگڑا کے چل رہا تھا، استغفر اللہ، فرشتے کو لنگڑا بتا رہا اور لوگ اس سے تقریر میں بلا رہے۔ وہ امین القاضی کہہ رہا ہے کہ کیا معلوم کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے پیر صاحب سے بات کرتا تھا تو یہ عبد القادر جیلانی کہہ کے نہیں کرتا تھا، یا غوث اعظم کہہ کے اللہ بات کرتا۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ تو اللہ کے رسول کی شان ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یہ شان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، سمجھیے بات آپ؟ یہ اللہ کے رسول کی شان ہے، اللہ کے رسول کی شان ہے قرآن میں یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ تو وہ امین القاضی کتنے کفر بکتا، ایک کفر تھوڑی بکتا امین القاضی، جانے کتنے کفر بک چکا، جانے کتنے، لیکن معاف ہے۔ معاف کیوں ہے؟ جب تک وہ اعلیٰ حضرت کو مان رہا ہے تو معاف ہے، اور جس دن وہ کہے گا میں اعلیٰ حضرت کی اب ہر بات نہیں مانوں گا تو صحیح، لیکن اعلیٰ کی ہر بات نہیں مانوں گا، اسی دن سے سارے کفر پھر اس کے اوپر لاگو ہو جائیں گے، سمجھ گئے بات؟ اعلیٰ حضرت کو مان لینے جیسے ہے استغفار پڑھتے ہیں نا، استغفر اللہ ربی میں تولے، استغفار پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی اعلیٰ حضرت کو ماننے سے سارے کفر و شرک معاف ہو جاتے ہیں۔ آئی راست کی بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ وہ دیکھو اشرف آصف جلالی وہ مردود، اس نے یہ کہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سے خطا ہوئی باغ فدق کے مسئلے میں، تو بریلوی لوگ بہت خوش ہوئے، یہ لکھنؤ والا جو ایک پیر ہے لکھنؤ کے پاس رہتا ہے وہ بھی بڑا خوش ہوا، اور بھی پیر خوش ہوئے، لیکن یہ نہیں کہا کہ او مردود تو کیا بک رہا ہے، تو نے کبھی فاضل بریلوی کے بارے میں بھی ایسا بولا کہ فاضل بریلوی سے بھی فلاں وقت خطا ہوئی تھی، بول کے دیکھ پھر تیرے اوپر کتنی لعنت سے پڑتی ہے بریلوی حضرات کی، اور تجھے کہ مردود قرار دیں گے۔ یہ اشرف آصف جلالی جو پاکستان میں ہے نا، اس سے دعوت اسلامی والے بھی خوش، الیاس قاضی بھی خوش، کیونکہ وہ ان کے فیور کا آدمی ہے نا، وہ ان کی تعریف کرے گا، ان کے گن گائے گا، یہ اس کے گن گائیں گے دعوت اسلامی والے۔ دعوت اسلامی والوں کا پیر کہتا ہے کہ میں اس کے بال کو بال مبارک کے بعد ڈالا جاتا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے برابری کی جاتی ہے، اس کا میلاد نامہ بھی پڑھا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک کی جگہ لبیک یا پار کے نعرے بھی لگتے ہیں۔ ابھی اندور کے ایک صاحب آئے تھے، وہ بھی یہی بتا رہے تھے کہ دعوت اسلامی والے نعت شریف ہم پڑھ رہے تھے، نعت شریف کے پڑھنے کے اندر ہی، یعنی پڑھنے کے دوران ہی یا اس کے بعد میں وہ کہہ رہا کہ لبیک یا افطار کے نعرے لگا رہے تھے صاحب۔ اندور کی بات ہے، وہاں کے دعوت اسلامی کے لوگ میرے پاس آ کے گئے، ابھی یہاں پر سرون میں رک کے گئے، سمجھ گئے، وہ خود گواہی دے رہے تھے صاحب، کہنا میں خود نعت شریف پڑھا، کہنا میں نے نعت پڑھی تو انہوں نے لبیک یا افطار کے نعرے لگائے، نعت شریف سمجھ سننے کے بعد، سمجھے آپ بات؟ تو یہ اس تک معاف ہے کہ لئے آپ قاضی اعلیٰ حضرت کا نام لے کر قوم کو دھوکہ دیتا ہے، چندہ لیتا ہے، زکات لیتا ہے، صدقے لیتا ہے، اس کے ماننے والے، یعنی وہ نہیں لیتا تو اس کے ماننے والے تو لیتے ہیں، وہی سب سے 50,000 روپے بانٹتا ہے، ایک آدمی کو 50,000 بانٹتا ہے، چپراسی کو 15,000 روپے دیتا ہے، پھر بڑے کو 30,000 دیتا ہے، اور بڑے کو 50,000 روپیہ دیتا ہے کم بیش، ایک دلال کو 50,000 روپے دیتا ہے، تو کم سے کم دنیا میں 10 لاکھ دلال ہیں کم بیش۔ اب 10 لاکھوں کا دلالوں کا لگا لو، ایک 50,000 کے حساب سے کتنا روپیہ آ رہا ہے اس کے پاس میں، اور پوری دنیا میں بلڈنگیں خرید رہے، مدرسے بنا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ان کے پاس کیا قارون کا خزانہ ہے، یا قارون کا خزانہ ان کو مل گیا ہے۔ ابھی تو نہر فرات میں وہ خزانہ بھی نہیں ملا، جو نہر فرات کا خزانہ بھی ملے گا نا، یہ ابھی یہ نہر فرات کا خزانہ تو نکال نہیں سکتے جا کے دعوت اسلامی والے، لیکن ان کو یہ اتنا بڑا خزانہ ملا کہاں سے، میرے سمجھ میں تو بات نہیں آ رہی ہے۔ یہ ڈبوں سے اتنا پیسہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ہلدانی میں ایک ڈاکٹر فاروق صاحب ہیں، ڈاکٹر عثمان یا فاروق صاحب ہیں، جانتے ہو؟
ना मैं नहीं जानता। वो इलियास काजी को बहुत बड़ा अच्छा मोमिन मुसलमान सुन्नी मानते हैं, और एक तरफ ये भी कहते हैं कि सबसे ज्यादा रद्द मैंने किया है हल्द्वानी में उनका, और फिर उसको बहुत बड़ा अच्छा बुजुर्ग भी मानते हैं और अच्छा मोमिन सुन्नी मानते हैं, और ताहिरुल काजी को काफिर मानते हैं। ताहिरुल काजी ने ऐसी बातें तो नहीं करी जैसे इसने करी। ताहिरुल काजी ने अपने बाल को बाल मुबारक के नहीं बढ़वाया, ताहिरुल काजी ने अपना मीलादनामा तो नहीं पढ़वाया, ताहिरुल काजी ने लब्बे या ताहिरुल काजी के नारे तो नहीं लगवाया। हाँ, गलतियां तो है ताहिरुल काजी, हम मानते हैं, लेकिन ऐसे काम तो नहीं किए जैसे इलियास काजी करा। इलियास काजी को एक आदमी कहता है, इसके सामने खड़ा होकर कहता है कि हजरत अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम भेजा है, मैं मदीने शरीफ गया था, अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम भेजा है। तो ये कमबख्त इलियास काजी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब बैठे बैठे देता है। समझ गए? जी। बैठे बैठे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब देता है इलियास काजी। समझ गए बात आप? जी जी। तो जो अल्लाह के रसूल के सलाम का जवाब बैठे बैठे दे, कितना बड़ा बुजुर्ग बन रहा है उस जमाने का। वो क्या बताना चाहता है, देखो मैं रसूलुल्लाह के सलाम का जवाब बैठे बैठे देता हूँ, यही तो बताना चाह रहा। वीडियो मौजूद है, दुनिया देख लेगी कि हाँ ये देखो ये इसके सर। वो एक आदमी बोल कह रहा मदीने गए हैं और ये कुर्सी पे बैठा हुआ है, टस से मस नहीं हुआ, कुर्सी से टस से मस नहीं हुआ। जबकि टर्की के बादशाह, तो उसके पास जब कोई शख्स आया कहा हजरत अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम भेजा है, या अल्लाह के रसूल का कोई फरमान बतलाया उसको, टर्की बादशाह, तो उसके बारे में आया है। टर्की बादशाह फौरन तख्त से नीचे गिर गया, अदब की वजह से अल्लाह के रसूल का नाम सुन के अदब से नीचे गिर गया। और ये तो इलियास काजी लिख रहा है, देवबंदी बरेलवी अहले मौजूदी जितने भी हैं, सफा नंबर 27 में लिखा हुआ है मेरे पास। फैजान सुन्नत है जो कलकत्ता से बम्बई से छपी है, एक फैजान सुन्नत दूसरी जो एडिशन में उसके नंबर सफा नंबर 44 है, एडिशन के साथ 44 भी है 27 भी है। अब इसके बाद इस किताब को इसने कितने बार लोगों ने पढ़ा होगा, कितनी मर्तबा लोगों का, और आज भी जो लोगों के पास होगी उनका अकीदा क्या बन रहा होगा, इसने घर घर जाके तो बताया नहीं कि ये किताब में से हमने निकाल दिया। उसके सफा 27 में लिखा है कि जो भी लांडी के कब्रिस्तान में शरीक था, एक शख्स उठकर आ गया था, तो उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अरे नादान, कि लांडी के कब्रिस्तान में जितने भी लोग जमा थे सबकी बख्शिश हो गई, अगर तू भी उसमें रहता तो तेरी भी बख्शिश हो जाती। अब इज्तिमा में आपको मालूम है कि देवबंदियों के इज्तिमा में सुन्नी भी जाते हैं, सुन्नियों के इज्तिमा में देवबंदी भी जाते हैं। अभी ज्यादा पुराना इज्तिमा नहीं है, लांडी के कब्रिस्तान का अभी की बात है, 20 साल पुरानी बात है। अभी भी लोग गवाह मिल जाएंगे, देवबंदी भी, बरेलवी भी, अलियाजी भी, मौदूदी भी, सब मिल जाएंगे, जो भी शरीक होंगे सब मिल जाए। हाँ साहब हम भी शरीक, हम भी शरीक, अगर ऐलान कर दिया जाए तो अभी भी मिल जाएंगे। ये इलियास काजी भी तो जिंदा है, तो इसके इज्तिमा में जो शरीक होंगे वो भी अभी दुनिया में मिल जाएंगे। तो अब ये कहता नहीं वो अहले ईमान के लिए, तो इसमें ऐसा तो लिखा नहीं है कि अहले ईमान की मग़फ़िरत हुई, उसमें तो ये लिखा है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जितने लोग शरीक थे सबकी बख्शिश हो गई। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसने झूठ मंसूब किया है, और जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हो रहा है उसकी बख्शिश नहीं हो रही। मगर ये कैसे अंधे हैं मुसलमान, कैसे अंधे हैं इसके मानने वाले, कि एक तरफ दावा भी करते हैं अल्लाह के नबी को मानते हैं, दूसरी तरफ ये ऐसी ऐसी गुस्ताखियां कर रहा है इलियास काजी, फिर भी इसको नहीं छोड़ा। उसकी वजह है, उसकी वजह कि 50,000 रुपये मिल रहा है, ये मिलना बंद हो जाएगा, ऊपर से डोनेशन मिल रहा है, ये मिलना बंद हो जाएगा, हमारे घर मकान नहीं बन पाएंगे, हमारा पेट नहीं भर पाएगा, हमारे बच्चों को कौन पालेगा। यानी इनका यकीन खत्म हो चुका है, अल्लाह की रात से इनका यकीन उठ चुका है। समझ गए बात? तो ताजिए के बारे में 2 मिनट और सुन लो, क्योंकि मैंने ताजिए के ऊपर बताया नहीं, मैं आखिरी 2 मिनट कर देता हूँ। ताजिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाता है, इलियास काजी के बाप की याद में नहीं मनाया जाता है। समझ गए? ये तो अपना मिलादनामा पढ़वा रहा है, लब्बे अतबार के नारे लगवा रहा है, लेकिन इसने 1 महीना जो फाजिल बरेलवी के नाम बुक किया मदनी चैनल पे, सफर का पूरा महीना, इसने 1 घंटा भी कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान बयान नहीं की मदनी चैनल से। अब करेगा, अब मेरी रिकॉर्डिंग सुनेगा तो अब करवाएगा। ये इतना बड़ा इसके अंदर शातिर लोग हैं इसके दाऊद इस्लामी में, कि जब सुन लेते ना तो उसी बात को फिर इख्तियार करते हैं लोग कि यार इसका जवाब दो, ऐसा करने लगो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र करो मदनी चैनल पे, हजरत इमाम बाकर का जिक्र करो, और अलैहिस्सलाम भी बोलो, क्योंकि ये भी इतराज उठ चुका है कि ये इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं बोलते, दाऊद इस्लामी वाले नहीं बोलते। बहुत शख्स हैं तो मना करेंगे कि नहीं बोलेंगे, हम साफ साफ कह देंगे पूरे दाऊद इस्लामी वाले हिंदुस्तानी जितने भी, कि हम तकरीर में नहीं बोलेंगे, जो रिकॉर्डिंग हो हम ऐसी तकरीर में नहीं बोलेंगे, निजी महफिल में बोल देंगे, लेकिन तकरीर में नहीं बोलेंगे, इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं बोलेंगे, इमाम हसन को के नहीं बोलेंगे अलैहिस्सलाम, तो हम सैयदा फातिमा ज़हरा को भी अलैहिस्सलाम नहीं बोलेंगे, साफ साफ मना कर देंगे दाऊद इस्लामी वाले, पूरी दुनिया के दाऊद इस्लामी के लोग। मेरा चैलेंज है। वो कह रहे हैं नहीं तकरीर में और मदनी चैनल पे तो हम कभी अलैहिस्सलाम बोलेंगे ही नहीं हज़रात। अच्छा साहब रज़ियल्लाहु, हाँ रज़ियल्लाहु तो बस हम फाजिल बरेलवी को भी रज़ियल्लाहु बोलते हैं, इतना ही इनको बोलेंगे,
फाजिल बरेलवी को तो हम आला हजरत भी कहेंगे, अजहरी मियाँ को तो हम हुजूर भी कहेंगे, कादिर शरिया भी कहेंगे, रज़ियल्लाहु अन्हु भी कहेंगे, और इमाम हुसैन को खाली इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कहेंगे। ये दाऊद इस्लामी वालों का अकीदा है। यानी इमाम हुसैन को हम ताजुल शरिया भी ये नहीं कहेंगे, मना कर दें, नहीं हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ताजुल शरिया नहीं कहेंगे, कि साहब इमाम हसन को नहीं, उनको भी ताजुल शरिया नहीं कहेंगे, कि साहब उनको आप हुजूर इमाम हुसैन क्यों नहीं कहते, कि नहीं हुजूर तो हम बरेली वालों को ही कहेंगे, हुजूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु, हुजूर मुफ्ती आलम हिंद, हुजूर अज़हरी मियां रज़ियल्लाहु अन्हु, लेकिन इमाम हुसैन को खाली हजरत कहेंगे, हजरत अली को भी हजरत कहेंगे, आदम अलैहिस्सलाम को भी हजरत कहेंगे, और मूसा अलैहिस्सलाम को उनको भी हजरत कहेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम उनको भी हजरत कहेंगे, और बरेली वालों को उनको तो हम हुजूर ही कहेंगे साहब, हुजूर ताजुल शरिया, हुजूर मुफ्ती आलम हिंद। ये अनवारुल बयान आप पढ़ लो, सफ़ा नंबर 391 पढ़ लो आप, उसमें हजरत मौलाना शबई थानवी लिखा है। हजरत मौलाना शबई थानवी साहब फरमाया करते थे, दूसरों को ये काफिर कहना है कि काफिर कहो, और खुद हजरत लिख रहे हैं। सफ़ा नंबर 391 अनवारुल बयान जिल्द अव्वल, उसमें पूरी किताब में तमाम साहबा को उसने हजरत लिखा है और बरेली वालों को हुजूर लिखा है। अनवारुल बयान आप पढ़ लेना, ये मशहूर किताब हो गई इस जमाने में। और ये क्या कहते हैं कि रज़ियल्लाहु कहना जायज है गैर साहबा को, और अलैहिस्सलाम कहना जायज नहीं है। इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहना जायज नहीं, जबकि बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी ने लिखा। ये इमाम बुखारी से बड़े आलिम बन रहे हैं। क्या कहते हैं, तशब्बुह बिल रवाफिद है, तो हम कह रहे हैं ये तशब्बुह बिल अंग्रेज है, पैंट शर्ट पहनना तशब्बुह बिल अंग्रेज है, जीन्स पहनना तशब्बुह बिल अंग्रेज है। जो तुम कुछ कर रहे हो ये क्या है, ये 50,000 रुपए की तकरीर कर रहे हो, ये क्या है, 40,000 रुपए की तकरीर कर। यानी इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कहेंगे, बाकी और दलीलें दे देंगे रज़ियल्लाहु अन्हु कहने की, कि गैर साहबा को रज़ियल्लाहु अन्हु कह सकते हैं, लेकिन इनको अलैहिस्सलाम कहने की दलीलें नहीं मिलती बुखारी शरीफ में। बड़े पीर साहब ने पूरी किताब में कुनियतुत तालिबीन में देख लो, इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम लिखा है, और भी तमाम बड़े बड़े वलियों ने अलैहिस्सलाम लिखा है। समझ गए ना आप, समझ गए, अच्छी तरह समझो, ताकि कौम अच्छी तरह जब इनको समझ जाएगी। बस आखिरी गुजारिश है, ताजिया कह दो कि ताजिया इलियास काजी के बाप का नहीं बन रहा है, ताजिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में हम बना रहे हैं। और इसमें अदब इतना चाहिए कि नमाज कदा ना हो, औरतें लेडीज ना आए, क्योंकि लेडीज आ जाती है बेपर्दा, वो हराम। कोई लेडीज ना, लेडीजों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करें, लेडीजों में लेडीज ही जिक्र करने वाली हो, और जेंट्सों में यानी मर्दों में, और बाअदब और पाँचों टाइम की नमाज के बाद। इस बात को याद रखें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कोई नमाज कदा नहीं हुई करबला में। अगर नमाज कदा करने के बाद अगर ताजिया बनाते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, समझ गए। पाँचों टाइम की नमाज पहले फर्ज है, ताजिया तो बहुत बात की चीज है। पहले ताजिया बनाने से पहले 1,00,000 बार ये सोच लो कि हमारी कोई नमाज कदा ना हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कयामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जैसे जानबूझकर एक नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल जफा कुल्ल जफा वल कुफ्र वन निफाक मन समिया मुनादी अल्लाह युनादी इला सलाति बला युजीबहु। जुल्म पर जुल्म है, कुफ्र है, निफाक है, नमाज दिल की आवाज सुने और नमाज पढ़ने के लिए हाजिर ना हो। तो नमाज तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में कदा नहीं की, और ये कहते हैं ताजिया बनाने वाले खुलेआम नमाजें कदा कर रहे हैं। और ढोल हरगिज न बजाए जाए, ढोल बजाने से तकलीफ होती है, दिमाग में इम्प्रेशन यानी थोड़ा वो होता है, गड़बड़ी हो जाती है। हमारे हिंदू भाइयों को भी तकलीफ होती है। कोटा में हिंदू भाइयों के इलाके में ये ढोल बजा रहे होंगे मुहर्रम के दिनों में, तो उन्होंने रिपोर्ट की होगी, तो पुलिस वाले आएंगे भाई बंद कर दो, क्यों ढोल बजा रहा। माने नहीं, मर्दूद लोग मानते नहीं वो। अरे भाई ढोल बजाना एक अजीब मामला लगता है, दिमाग में टेंशन पैदा होता है यार। ढोल तो वैसे भी अजीब सा लगता है, खुशी के मौके पे भी ढोल अच्छा नहीं लगता, खैर है। और ये तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है, इस दिन ढोल बजाने का क्या मतलब है। अरे जो लोग ऐसे टाइम पे ढोल बजा रहे हैं, तो चाहिए कि जब उनका बाप मरे अम्मा मरे तब ढोल बजाए जाए अच्छी तरह से, पब्लिक जानबूझ के बजाए। क्या है यार, ये क्या तरीका अपना रखा है तुमने, क्यों क्या अपना रखा है। अरे गम में बजा रहे यार, गम में तो बजा रहे, तेरी अम्मा मर गई, तेरा बाप मर गया है, इसलिए हम बजाने आए हैं कि तेरे बाप का अच्छी तरह प्रचार हो जाए। पीलीभीत में तेरा बाप मर गया, पीलीभीत में तेरी अम्मा मर गई, पीलीभीत में तेरी फूफी मर गई, वो जितने भी हैं। और शायानजा जो पढ़ के आया, जहां नजर मिस्र से सुलह कुल्ली होके आ गया, उसकी अम्मा मर गई, उसकी फूफी मर गई, उसके लिए ढोल बजा रहा है पीलीभीत वालों के लिए। वो नकीबुर रहमान जो कानपुर में है, जिसकी बहन वहाबी के घर में हाजी अब्दुल कदीर, आप कानपुर में जाके मालूम कर लो, मोहम्मद शफी साहब हैं, हारून साहब हैं, इनसे आप जाके पूछ लो। पान वाले हारून भाई मशहूर है, मैं गया हूँ उनके पास बाबूपुरवा में, बहुत बड़े कानपुर के मशहूर आदमी है हारून भाई पान वाले बाबूपुरवा में। उनसे पूछ लो नकीबुर रहमान की बहन कहाँ। ये तो दूसरी जगह जाके कट्टर सनाबिल अदा का सुसर देवबंदी है, मुहद्दिस कबीर हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब ने एक ही बाउंसर मारा है शुएब अख्तर की तरह से, एक ही बाउंसर में ऐसा घायल हुआ गैरी क्रिस्टन की तरह से खेलने भी नहीं आ पाया। गैरी क्रिस्टन रिटायर हट हो गया बाद में।
تو इनके तो ससुर देवबंदी सनाबिल अदाका, ये अगर इनके ढोल बजा रहे हैं तो इनके मरने के बाद इनके भी ढोल बजाए जाए। इनके घर में साहब हम तो ढोल बजाएंगे, इसी के गम कर देना, आज गम कर दें। बस ये है कि आखिरी बात, ढोल ना बजाए जाए। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में जैसे ताज़िया अगर कोई बनाता है तो मना न किया जाए, बस वो कहा जाए एक जगह रखो, एक जगह रखो, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में आप जिक्र हुसैन करो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करो। और जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करने, आप पाबंदी लगा दो मौलवी से, ए मौलवी इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम भी बोलना, इमाम हसन का नाम आए तो अलैहिस्सलाम बोलना, सईदा फातिमा ज़हरा का नाम आए तो अलैहिस्सलाम बोलना, वरना माइक खींच के रख लेंगे तुमसे, भगा देंगे, जाओ यहाँ से, निकलो बात। समझ गए? ये तुम्हारे हाथ में फंसे, तुम्हारे पास रखना, ये समझ लेना मौलवी, ये नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। तुम अपने बाप दादा को रज़ियल्लाहु कहो, आज के मौलवियों को तुम रज़ियल्लाहु को, जो अभी मर रहे हैं उनको तुम रज़ियल्लाहु कहो, और इमाम हुसैन को कहो कि अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते। फिर ये बुखारी शरीफ में क्यों लिखा है इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम? ये इमाम बुखारी ने क्यों लिखा? हर जगह लिखा। और बड़े पीर साहब ने क्यों लिखा? जिनको तुम मानते हो, बड़े पीर साहब को सब मानते हो, बड़े पीर साहब को एक तरफ कहते हो, उनको हम मानते हो, फिर उनकी किताब में लिखा हर जगह अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन। क्या तुम उनसे बड़े पीर हो? बड़े पीर साहब से बड़े पीर हो जो कहते हो कि अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते हैं? अरे अलैहिस्सलाम उनके लिए मखसूस है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, सईदा फातिमा ज़हरा के लिए अलैहिस्सलाम मखसूस है, वो इस हुक्म से मुस्तस्ना है। अंबिया फरिश्तों के लिए अलैहिस्सलाम कहना है, ये उलमा का इत्तिफाक है, लेकिन इस हुक्म से अहले बैत किराम मुस्तस्ना है। आओ मेरे पास कोई भी मौलवी हो तो मेरा नंबर देना 88-152-53-598, देखना कैसा भागता है, मेरा नंबर देना। अतर हुसैन काजी शहदाए गरीब नवाज अतर हुसैन काजी सिरोंज मध्य प्रदेश, बात कर इस बारे में। नंबर है 88-152-53-598, देखना कैसा भागता है, चाहे हल्द्वानी का हो या रामनगर का हो या रामपुर का हो या काशीपुर का हो, ऐसे भागेगा जैसे बिल्ली भागती है कि नहीं, ऐसे भागेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। कोई भी हो मेरी बात कराना उससे कि अगर वो कहे कि इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम ही कहते, अभी जस्ट बात कराओ, तुरंत बात कराओ, ठीक है ना? ठीक है, अब इसको करवा देंगे चैनल पे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। अब नमाज भी पढ़ना है, अब भी पढ़ लो, ज़ोहर का टाइम हो गया, ठीक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।